पीक आफ्टर पीक आफ्टर पीक। ओ भाई ऑडियो फट गई। This was my first reaction after watching this trailer. Finally हमें मिल चुका है हमारा फर्स्ट लुक एट MCU's Fantastic Four and it's just ब्यूटीफुल। तुम्हें पता ही यार MCU की हालत कुछ ज्यादा ठीक थी नहीं पिछले कुछ सालों में, लेकिन जब ये मूवी अनाउंस हुई थी everyone knew that they can't fail it, including Marvel. And कास्ट को लेकर तो वैसे ही skeptical थे लोग शुरू से ही, जब से अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर. But this trailer changed that. At least to me. We all know Superman इस साल की सबसे anticipated movie होने वाली है, and हो भी क्यों ना, we are getting a proper Superman solo movie after 13 years. Similarly, Fantastic Four भी Marvel के लिए one of the most anticipated movie है इस साल की, and I am very excited for this movie. After all, we are getting Marvel's first family for the very first time on big screen. Actually, there are like 4 other Fantastic Four. I am excited to see them in their first ever live action movie for the very first time. Okay, I really love this trailer. From the aesthetics, which is retro future 60s analog वाला जो look है, you can see the 4:3 वाला TVs and 60s inspired cars, tech थोड़े बहुत वैसे. This universe is a blend of like high tech and 60s analog tech, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. But it's visually looking very good. To the character designs, I love them. To the music, it's so epic, so grand and so heroic. Just love the music. And the visuals, I think this is one of the most attractive visually looking Marvel movie ever. The camera work, जो हमारा जो scene का composition है, whatever the scene is, lighting and all, जो भी है सब कुछ, it looks very different and very good. Even if we separate everything from this, अगर हम किसी भी चीज के बारे में ना सोचे, not story, not characters, nothing else, I am just excited to see how this movie will look visually. But Marvel वालों ने जो फैंस का ट्रेलर रिलीज में काटा है ना, everybody was waiting कि भाई 5:30 बजे ट्रेलर आएगा, we will see 5:30 बजे क्या होता है क्या नहीं होता है, और जैसे 5:30 बजते उन्होंने दोबारा एक और घंटे का ट्रेलर, एक और घंटे का टाइमर लगा दिया था. उस टाइम बहुत गुस्सा तो आया था मेरे को, but I waited and the wait was worth actually. Let's break down the trailer. So as I said कि जो इन्होंने 1 घंटे का और टाइमर लगा दिया था ट्रेलर रिलीज से पहले, so that was intentional. That was not कि टाइम वो मांग रहे थे, but that was intentional. You see, वो उससे तुम्हें एक ऐसा फील देने वाले थे, क्योंकि they were promoting this trailer is like first launch करके वो कर रहे थे. So launch is basically जब resembles that कि जब वो रॉकेट लॉन्च वगैरह हम देखते हैं, that's that. So वो इस जो 1 घंटे का जो टाइमर लगा था उसके बीच में जो भी पीछे चल रहा है, मैं लिंक डाल दूंगा, वो तुम देख सकते हो पूरा 1 घंटे का वीडियो, दे हैव अपलोडेड इट. तो उसमें उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी है दैट इट्स अ रॉकेट लॉन्च इवेंट. बट उसमें एक चीज थी जो विच आई वांट टू मेंशन दैट कि उस वीडियो का जो भी नरेट कर रहे थे एंड जो भी बीच में विजुअल्स वगैरह आ रहे थे, दैट वाज कमिंग, उसमें लिखा था फ्यूचर फाउंडेशन. अब फ्यूचर फाउंडेशन क्या है, विच क्लियर्स आउट अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स. फ्यूचर फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रीड रिचर्ड्स ने ही बनाया था टू ब्रिंग इन द brightest mind, just not in the world but in entire universe, to do discoveries and inventions and all, like छोटी मोटी discoveries and inventions भी नहीं, you can like cosmic level inventions and all. अब ये unique भी क्यों हो जाता है and ये establish भी इससे confirm भी हो जाता है कि जो लीक ट्रेलर हमारा आया था लास्ट ईयर सिनेमागॉन के टाइम पे, अब वो लीक ट्रेलर में लगाऊंगा नहीं obviously, but we can, अगर तुम में से किसी ने देखा होगा उसको, तो you can see that उसमें एक brief moment था जहाँ पे रीड बच्चों को पढ़ा रहा है. It is now confirmed that Future Foundation exists in this world, and जो वो सीन था that is connected to Future Foundation. रीड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को उन क्लासेस में पढ़ा रहा था. नाउ स्पाइडरमैन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू फ्यूचर फाउंडेशन फॉर अ ब्रीफ टाइम, जब कॉमिक्स में ह्यूमन टॉर्च की डेथ हो जाती है. इफ यू हैव सीन दैट व्हाइट एंड ब्लैक सूट जिसके यहाँ पे हेक्सागन बना होता है, दैट इज योर फ्यूचर फाउंडेशन सूट. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में जब ये लोग मेन टाइमलाइन में आएंगे, तब इन फ्यूचर वी कैन सी अ क्रॉसओवर मूवी विद फैंटास्टिक फोर एंड स्पाइडरमैन, जो कि कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा होता था. एंड आई पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वेरी मच. यस, फ्यूचर फाउंडेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस यूनिवर्स एंड इज वेल गोइंग, एंड एवरीथिंग जो रीड कर रहे हैं एंड दे गॉट द पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट कम्स फ्रॉम फ्यूचर फाउंडेशन. एंड ऑफ कोर्स उनकी जो पावर्स वगैरह है, क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज इन सॉर्ट ऑफ वे इस यूनिवर्स में. ट्रेलर शुरू होता है विद अ शॉर्ट लिफ्ट खुलते हुए, जहाँ हमें एक लिविंग रूम दिखता है विच इज़ इनसाइड बैक्स्टर बिल्डिंग, एंड वी कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड जो कि न्यूयॉर्क है. नाउ हमें कैसे पता वो न्यूयॉर्क है, बिकॉज इट इज वी कैन सी द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. बट तुमने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के और बिल्डिंग्स है विच
shouldn't have been there क्योंकि it's 60s and they don't exist in real life. So that's the thing they are establishing कि ये दूसरा यूनिवर्स है, not our mainline MCU. रीड और सू यहाँ पे किसी को अपना बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर किसी को अपना घर दिखा रहे हैं एंड फैमिली डिनर के बारे में बात करें कि जो कोई भी जहाँ कहीं भी हो, हर संडे शाम को 7 बजे दे डू फैमिली डिनर. एंड दिस इज important because they are Marvel's first family and the family is very important in this movie. And if you have read enough about Fantastic Four या फिर तुमने animated shows वगैरह देखे, so you know that they are closely knit. उनकी जो main strength है, you can say, तो उनकी जो main strength है that comes from their family, which is missing in the movies. That's why I was saying कि this is the very first live action Fantastic Four movie true to comics. जिसके बाद हमारा aspect ratio change होता है जो कि 4:3 था, 60s पे based है, and we can see the new Marvel logo. I am very happy कि उन्होंने change नहीं किया. Thank you Marvel. फिर हमें दिखाया जाता है Baxter Building from outside, which looks a bit more high tech than other building. और हो भी क्यों ना, क्योंकि Baxter Building है भाई, Reed Richards की building है वो. Then we can see Herbie, जिसका full form है Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. कौन सोचता है भाई? But he is a robot जिसको comics में Zendarians की help की मदद से बनाया गया था. It will be interesting to see कि इस मूवी में इसका क्या रोल होने वाला है एंड हाउ ही विल बी क्रिएटेड. आई मीन रीड रिचर्ड्स है, ही इज द मोस्ट जीनियस मैन ऑन द अर्थ, सो ही कैन डू इट. देन वी गॉट आवर फर्स्ट लुक एट द थिंग इन दिस ट्रेलर हु इज कॉमिक एक्यूरेट. बट यहाँ पे मेरा एक ही इशू था इसका. आई मीन स्टिल लाइक दैट कैरेक्टर इन दिस ट्रेलर, बट थोड़ा सा यूज्ड टू होने में टाइम लगेगा. हिज वॉइस इज नॉट लाइक थिंग जो कि हमने अभी तक सुनी है एंड एनिमेटेड सीरीज में या फिर जो भी मूवीज वगैरह आई है उसमें. हिज वॉइस इज लाइक नॉट थिंग लाइक, यू नो, अगर तुमने एक्सप्लोर किया फैंटास्टिक फोर को अलग अलग मीडिया में, यू एक्सपेक्ट थिंग टू साउंड लाइक अ बिट ग्रॉगी, अ बिट मैस्कुलिन, यू वुड से. ही साउंड मैस्कुलिन, आई एम नॉट सेइंग दैट ही डजंट साउंड मैस्कुलिन, बट वो आवाज उसकी बॉडी साइज से मैच नहीं कर रही. आई गेस दैट्स व्हाट दे वांटेड टू शो कि ही इज बिग, ही लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, बट ही इज नॉट. ही इज अ kind person. He's just simply a good man. That will be interesting to see. And the first thing that Thing does in the trailer is that he tasted food जो कि हर्बी ने बनाया था एंड उसके ऊपर टिप्पणी देना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, विच इज द स्ट्रेट आउट रेफरेंस फॉर द बेयर. मैंने नहीं देखी है बेयर, बट आई नो इट्स अ शो अबाउट कुकिंग इंडस्ट्री एंड ऑल, एंड ही इज वन ऑफ द लीड एक्टर्स इन दैट सीरीज. नाउ वी कैन सी दिस सीन जहाँ पे रीड ब्लैक बोर्ड में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा है एंड वी कैन सी उसमें कुछ ब्लैक होल्स वगैरह बने हैं, एंटर एग्जिट लिखा है इफ यू सी हियर. आई थिंक रीड इज ट्राइंग टू डिस्कवर वे टू ट्रैवल मल्टीवर्स इन दिस मूवी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मूवी मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है. मूवी के एंड में ये लोग मल्टीवर्स ट्रैवल करेंगे एंड ये कनेक्टेड होगा सीधा डूम्स जैसे. सो या आई थिंक दैट्स व्हाट रीड इज डूइंग. एंड तुम अगर पीछे इस वाले सीन के पीछे अगर तुम देखोगे जो सूट्स वगैरह हैं, दैट looks similar to what their superhero suits are. I mean वो दूर से देखने में लग तो रहे हैं स्पेस सूट्स, बट वो वाले जो सूट है और जो इन्होंने बीच में जो पास्ट के शॉट्स दिखाए थे व्हेन दे वर गोइंग टू स्पेस, तो वो वाले सूट्स और इन वाले सूट्स में काफी डिफरेंस है. बट ये वाले जो सूट है ये काफी सिमिलर लग रहे हैं तुम्हारे जो इनके जो सुपर हीरो सूट्स है, जो फैंटास्टिक फोर का जो प्रॉपर सुपर हीरो सूट है उसकी तरह काफी हद तक लग रहा है. उसके बाद फिर हमें कुछ सीन देखने को मिलते हैं जहां पे वो लोग स्पेस में जा रहे हैं, हाउ दे यूज्ड टू लुक लाइक. देन वी गेट अ डायलॉग फ्रॉम रीड एंड सू जो कि बेड पे लेटे हैं एंड हम उसमें रीड का गिल्ट देख सकते हैं. वी कैन फील हिज गिल्ट उसके डायलॉग से कि ही ब्लेम्स हिमसेल्फ दैट वो रिस्पॉन्सिबल है सू के पावर्स के लिए जो भी शी टर्न्स इनविजिबल. पेन के साथ जो हो रहा है दैट ही लुक लाइक रॉक, जॉनी के पास जो फायर पावर्स है उसके लिए. आई लव दैट कि यहाँ पे थिंग का सेल्फ हेट्रेड दिखाया कि दैट ही हेट्स हिमसेल्फ, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि ही वाज लुकिंग एट अ टीवी जहाँ वो अपने पुराने इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था एंड उसमें दिखाया था कि हाउ ही लव्ड हिमसेल्फ, हाउ ही कैरिड हिमसेल्फ, एंड नाउ दैट ही गॉट हिज पावर्स एंड ही लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज पास्ट सेल्फ एंड ही थिंक्स दैट कि लोग उसे हेट करते हैं. बट इन आगे वाले शॉट्स में हम देख सकते हैं पीपल लव हिम. हैलोवीन है, लोगों ने उसका कॉस्ट्यूम पहन रखा है एंड ऑल. वो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो उसका है जो कॉमिक्स में से आया है कि ही हेट्स हिमसेल्फ, अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकता बट उनकी भी गलती नहीं है, बट ही ट्राइज टू हाइड इट जब वो उनके साथ रहता है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर देखा जाए तो उसके जो बाकी जो पार्टनर्स थे, जो उसकी बाकी की फैमिली है, उसका दोस्त, उसके दोस्त की वाइफ, उसका भाई, दे ऑल गॉट कूल पावर्स. दे डिड नॉट हैव टू लूज देयर ओन फिजिकल फॉर्म बट ही हैड टू लूज हिज फिजिकल फॉर्म. सो वो उसका डायलेमा दिखाया है थिंग का, विच आई रियली लव कि
दे आर एक्सप्लोरिंग दिस इन दिस मूवी। बट इसी चीज को सू एक पॉजिटिव वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जॉनी वॉज ऑलवेज जॉनी, ही इज, अगर तुमने कॉमिक्स तो नहीं पढ़ी होगी पुरानी फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स पढ़ने को इंटरेस्ट लेता नहीं है इतनी जल्दी। इन कॉमिक्स ही इज अ टीनेजर, जो कि हमें अभी तक मूवी में दिखाया नहीं है। तो ही इज अ टीनेजर, ही इज एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ, ही इज हॉट हेडेड जस्ट लाइक एवरी टीनेजर, ही वांट्स टू ड्राइव फास्ट कार्स, ही वांट्स टू हुक अप एंड एवरीथिंग, जो कि दूसरी मूवीज में दिखाया है, बट उसका जो टीनेजर वाला पार्ट है दैट वाज मिसिंग। ठीक है, सो अब आई डोंट थिंक सो इसमें टीनेजर दिखाएंगे, बट वो लेट टीन्स जो कि 19 से 25 साल के बीच का जॉनी स्टॉर्म दिखाएंगे, विच इज इक्वल टू हमारा करंट एमसीयू का स्पाइडरमैन। एंड वो थिंग के लिए बोलती है कि बेन, थिंग बोल रहा हूँ, बेन के लिए बोलती है कि बेन वॉज ऑलवेज अ रॉक, दैट ही वॉज ऑलवेज देयर। उसका कहने का मतलब था कि ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर देयर फैमिली, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर देयर फ्रेंड्स, सो ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दैट्स व्हाई ही लुक्स लाइक दैट। एंड वो फिर अपने लिए कहते हैं कि आई वॉज ऑलवेज देयर। तो वन थिंग दैट वी डिड नॉट सी इन दिस ट्रेलर इज रीड की पावर्स। इस ट्रेलर में ज्यादा स्क्रीन टाइम सू स्ट्रॉन्ग को ही मिला है, एंड आई थिंक शी इज लाइक द मेन कैरेक्टर उसके पर्सपेक्टिव से होने वाली स्टोरी, बट वी हैव टू सी दैट, विच इन अ वे विल बी गुड बिकॉज शी इज द वन जो पूरे ग्रुप को टाई करके रखती है। एंड वी हैड रूमर्स की कभी कि सू स्टॉर्म विल बी प्रेग्नेंट, शी इज टेकिंग लाइक अ मदर्स रोल इन दिस whole trailer, so she is the center point of that group which makes that group a family. Now भाई इस ट्रेलर का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा was their powers, जो जिस तरीके से इनके पावर्स को दिखाया गया, लाइक थिंग का जो एकदम पूरा कॉमिक एक्यूरेट लुक है, that was amazing। ठीक है, एंड सू की पावर जो दिखाई गई है कि अभी तक जितना दिखाया था इट हल्का सा बस डिस्टॉर्ट कर देते थे, पता नहीं अजीब सा लगता था, बट आई लव दैट कि उसके जो पावर्स है वो ऐसा दिखाया गया है जिसमें हमारा पूरा रेनबो का स्पेक्ट्रम आ रहा है एंड ऑल। It was so beautiful, just like Vanessa Kirby. It looks so beautiful and I am dying to see this. Second भाई Johnny's flight, Johnny जो पूरा एकदम स्ट्रेटोस्फेयर क्रॉस करके पूरा स्पेस तक जाता है to check his limits. That scene was so beautiful and जो जॉनी की पावर्स जो दिखाई गई है जिस तरीके से, loved it. ऑफ कोर्स रीड की पावर नहीं दिखाई गई है, आई गेस उसे ट्रेलर के लिए बचा रखा है, क्योंकि टीजर में सब कुछ दिखा देंगे तो फिर ट्रेलर के लिए क्या बचेगा। अब जॉनी की बात हमने करी है तो क्यों स्पाइडरमैन वाज कनेक्ट, स्पाइडरमैन की बात मैंने क्यों छोड़ी। इन कॉमिक्स जॉनी स्टॉर्म एंड पीटर पार्कर आर वेरी गुड फ्रेंड्स। उनका जो रिलेशनशिप है वॉज वेरी गुड, जो तुम अपने भाई अपने दोस्तों के साथ भाईचारा ऑन टॉप वाला जो रिलेशनशिप रहता है, तो उनका वैसा भाईचारा वाला सीन है। इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट दैट इन एमसीयू, क्योंकि टॉम हॉलैंड एंड जोसेफ क्विन दोनों ही सिमिलर एज के हैं एंड वुड लव टू सी कि उनका जो केमिस्ट्री एंड ऑल, हाउ दे वो किस तरीके से बेन ग्रिम को परेशान करते रहते हैं एंड हाउ दे डू देयर एक्टिविटीज। आई मीन आफ्टर दिस वी नीड स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स इन लाइव एक्शन, क्योंकि जो ओरिजिनली अगर तुमने बचपन में देखा होगा द स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स वाला जो कार्टून आता था वो अगर तुमने देखा होगा, तो उसमें स्पाइडरमैन, आइसमैन एंड फायर, आई फॉरगॉट हर नेम, फायर स्टॉर्म थी, क्या नाम था, आई फॉरगॉट हर नेम। तो वो जो कैरेक्टर था दैट वाज सपोज टू बी ह्यूमन टॉर्च, इफ यू डोंट नो दैट, बट बिकॉज ऑफ राइट्स उन्होंने वो एक कंप्लीटली ओरिजिनल कैरेक्टर बनाया फॉर दैट शो। सो आई वुड लव टू सी कि एक मूवी आए फॉर इन फ्यूचर जो भी होगा, क्योंकि एज वी नो म्यूटेंट सागा आने वाला, तो आइसमैन विल ऑल्सो बी देयर, सो वुड लव टू सी अ मूवी विद स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स विद दीज थ्री, लाइक ट्रियो। मजा आ जाएगा इस मूवी को देखने में। जॉनी एंड पीटर आर ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स टू ईच अदर, सो व्हेन जॉनी डाइड ही लेफ्ट अ मैसेज कि अगर मैं कभी मर भी जाता हूं तो गिव माई पोजिशन टू पीटर, दैट्स वाई ही जॉइंड फ्यूचर फाउंडेशन। तभी जो फ्यूचर फाउंडेशन में वो क्यों था स्पाइडरमैन, दिस इज द रीजन कि फ्यूचर फाउंडेशन में जॉनी की वजह से एंड टू गिव हिम रिस्पेक्ट Peter joined Future Foundation. Let's talk about the visuals of this movie. It's so beautiful. अभी तक मैंने शायद इतना सुंदर MCU मूवी नहीं देखा होगा, देखना पड़ेगा कौन कौन सी मूवीज है। Eternals was also good visually, but this was unique, so beautiful visually. मैं किसी चीज के लिए जाऊँ ना जाऊँ इस मूवी में, but I would go just to see this movie in IMAX just for its visuals. Like very good. जिस तरीके से जॉनी स्टॉर्म वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, वो गिरता है नीचे, बेन ग्रिम का भागना, everything looks amazing. Now there's a scene in this movie जो कि तुम देख सकते हो इस वाले सीन में कि आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं एंड ऑल. नाउ देयर इज अ रूमर कि उवाटू जो कि हमने व्हाट इफ में देखा था, ही विल आल्सो बी इन दिस मूवी. इट्स अ वेरी हैवी रूमर, आ भी सकता है नहीं भी सकता, बट टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ये रूमर ही है. आई एम जस्ट सेइंग कि ये वो सीन हो सकता है बिकॉज इन कॉमिक्स जब गैलेक्टस अर्थ में आने वाला होता है तो वॉचर अर्थ को हाइड करने की कोशिश करता है विद एस्ट्रॉइड्स एंड ऑल, एंड सबको लगता है कि भाई आसमान में पत्थर आ रहे हैं. दिस वाज द वेरी फर्स्ट कॉमिक जो मैंने पढ़ी थी इन माय एंटायर लाइफ. सो दैट्स आल्सो व्हाई फैंटास्टिक फोर इज वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम वेटिंग टू सी अ कॉमिक एक्यूरेट फैंटास्टिक
4 मूवी एंड मैं अभी तक आज तक जितनी मूवीज देखे आई ऑलवेज बिन डिसअपॉइंटेड। जो वो वाला सीन है आई थिंक वो वॉचर के द्वारा किया जाएगा टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम गैलेक्टस। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इफ सीजन 3 उसके भी जब ओवाटू को जब पकड़ लेते हैं तो जो तीनों वॉचर्स होते हैं वो पूछते हैं उससे कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया है, व्हाई ही इंटरफेयर दैट मच इन द यूनिवर्स। उस टाइम पे वो 3-4 चीजों का नाम लेते हैं एंड वन ऑफ द नेम्स वाज रीड रिचर्ड। सो आई थिंक ओवाटू हेल्प्ड दिस यूनिवर्स रीड रिचर्ड टू फाइट गैलेक्टस। वी विल हैव टू वेट टू सी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नाउ वी सॉ फैंटास्टिक कार, ऑफ कोर्स इट इज लुकिंग ऑब्वियसली वेरी गुड, बट जो तुम्हारा सैन डिएगो कॉमिक कॉन का जो पैनल था उसमें फ्लाइंग कार दिखाई थी और नाउ वी हैव टू वेट एंड सी कि इट विल फ्लाई और नॉट, बट इट लुक्स एनीवे इट लुक्स अमेजिंग। अब जॉन मेल्कोविक भी है इस मूवी में जिसका एक छोटा सा लुक रिवील किया था इस ट्रेलर में। बाय हिज लुक्स ही लुक्स लाइक अ कॉमिक कैरेक्टर रेड घोस्ट जिसकी सिमिलरली फैंटास्टिक 4 जैसी ही स्टोरी है एंड ही इज देयर बिकॉज ऑफ फैंटास्टिक 4, ही वाज मेड बिकॉज ऑफ फैंटास्टिक 4 एंड बिग सोर्सेज आल्सो क्लेम्स दैट कि इस मूवी में मोलमैन भी होने वाला है। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि विच कैरेक्टर इज ही प्लेइंग, ईदर रेड घोस्ट या फिर मोलमैन। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन में गैलेक्टस का कॉमिक एक्यूरेट लुक आया है, नॉट लाइक द क्लाउड विच वाज शोन इन लास्ट मूवी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था मेरे को ये ट्रेलर का। बस मेरे को पूरे ट्रेलर में बस यही चीज खटकी है, गैलेक्टस का रिवील, दैट बस ऐसे ही डाल दिया गैलेक्टस का। अगर उनको डालना ही नहीं चाहिए था गैलेक्टस वाला, दिस ट्रेलर एनीवे इट इज परफेक्ट, बट अगर वो गैलेक्टस को बचा के रखते तो दैट वुड हैव बीन गुड। बट आई गेस उनका डालने का रीजन भी था, आई गेस जो लीक ट्रेलर था उसमें गैलेक्टस का रिवील था, दैट्स उन्होंने इसमें दिखा दिया, बट दैट रिवील वाज मच बेटर देन दिस वन। सो अगर वही चीज डाल देते तो आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पी, बट दिस डज नॉट लुक गुड एक्सेप्ट फॉर द वन शॉट जिसमें उसका पूरी शैडो न्यूयॉर्क के ऊपर आ रही होती है। वेटिंग टू सी द सीन। लास्ट सीन में फाइनल सूट रिवील होता है उनका, सो कॉमिक एक्यूरेट एंड सो गुड, आई लव दो सूट। एंड अगर तुम्हें याद होगा कि जो इन्होंने लास्ट ईयर फरवरी में जो पहला लुक रिवील किया था, जो पहला इनका कास्ट रिवील हुआ था वैलेंटाइंस डे वाला, उसका जो सूट है, उसके जो सूट्स हैं वही सूट इसमें है। तो वो हमारा फाइनली हम देख सकते हैं कि हाउ इट लुक्स रियली इन रियल लाइफ, विच लुक्स अमेजिंग। एंड म्यूजिक ऑफ दिस ट्रेलर, ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा है म्यूजिक में। आई लव दैट म्यूजिक। वो पूरे म्यूजिक ने ही इस ट्रेलर को बांध रखा था एंड इट इज अ प्रॉपर सुपर हीरो टाइप म्यूजिक। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ म्यूजिक एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें ऐसा म्यूजिक इस ट्रेलर में मिल रहा है। ओके, आई लव दिस ट्रेलर। I really love this trailer. मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, they said कि सुपरमैन का ट्रेलर अच्छा था। सुपरमैन ट्रेलर was good, but in my opinion, I really liked this trailer more than सुपरमैन ट्रेलर, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि सुपरमैन का ट्रेलर मेरे को कनेक्ट करने में इट्स लाइक 2-3 वॉच के बाद मैं सुपरमैन के ट्रेलर से कनेक्ट कर पाता। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, सुपरमैन का ट्रेलर बहुत अच्छा था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवी, बट इस वाले ट्रेलर से मैं इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया था। सो I like this trailer very much. Expectations बहुत high है इस मूवी से। They will also be setting up a very important character in this movie. I'm telling you, लिख लो, ये होने वाला है। Who is RDJ का Dr. Von Doom? तुम्हें डूम जैसे पहले इसी मूवी में देखने को मिलेगा कि how he became Dr. Doom. One of the post-credit scene will connect to Dr. Doom, of course, and how he will become Dr. Doom. And he's gonna have major role क्योंकि RDJ का वो रिलीज हुआ था, he is going to be Dr. Doom in MCU. तब मैट शैकमैन से जब पूछा गया था तब उन्होंने बोला था कि I have known for months कि he is going to be Dr. Doom. Then उसका जानने का रीजन कुछ था नहीं. If he knows, that means he is in the movie and gonna have a very major role in the movie. रीड रिचर्ड्स के बिना डॉक्टर डूम नहीं है. रीड रिचर्ड्स ही रीजन है डॉक्टर डूम बनता है डॉक्टर डूम. उनका जो राइवलरी है वो इस मूवी में सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एकदम से नहीं दिखा सकते हैं. सो आई एम गेसिंग कि उसका रोल होने वाला है. आई होप आई विल बी ट्रू एंड इसको सिर्फ मूवी के लिए बचा के रखे तो आई विल बी अप्रिशिएटेड वेरी मच. सब दिखा दो तुम, बस डॉक्टर डूम को मत दिखाना, कुछ छोड़ देना मूवी के लिए. बाकी तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर तुम कमेंट में बता सकते हो नीचे. आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन ओवर देयर. वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज गो टू माई चैनल एंड वॉच माई अदर वीडियोज एंड देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप गिकिंग आउट.